Good morning students, welcome in my YouTube channel, and today I will discuss with you about the translocation in phloem. So translocation means the photosynthate. Photosynthate means the material, the substance that is synthesized by the process of photosynthesis, and that is glucose. And that glucose will be converted into sucrose, that is sugar. We utilize this sugar in our kitchen daily. So that sucrose will be transported from the phloem, isn't it? That is called translocation. Means it will be translocated from one place to another place. So now on the screen you are seeing the complex permanent tissue that we have learned in class 9th. So just I have taken this review so that you can understand about the different constituents of phloem and xylem. So we know, you can see here the constituents of the xylem: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers, isn't it? Now you can see the structure of these tracheids, vessels, xylem parenchyma, all these. So tracheids and vessels are pipe-like structure present in xylem, isn't it? Last time we had discussed about the transportation of water and minerals through xylem. So these tracheids and vessels are responsible for the movement of water and minerals, isn't it? Through xylem. So that's why xylem and phloem are complex permanent tissue, because they have different types of cells and they are functioning together to complete one task. Now you see the phloem, that is our concern today. So this phloem constituents, or this phloem, it is made up of 4 different types of cells: सिप ट्यूब cells, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers, isn't it? So मैं आपको फिर से ध्यान दिला रहा हूँ, सिप ट्यूब सेल्स, कंपेनियन, phloem parenchyma, phloem fibers. सिप ट्यूब सेल्स का अपना कोई न्यूक्लियस नहीं है, इट इज रेगुलेटेड बाय दिस कंपेनियन सेल्स. ध्यान दीजिएगा, सिप ट्यूब सेल्स न्यूक्लियस लेस है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और यहाँ पर सिप ट्यूब सेल्स को रेगुलेट करने वाले, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला ये कंपेनियन सेल्स है, जो हमेशा इसके साथ चिपका हुआ रहता है, अटैच्ड फॉर्म में रहता है, क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है, इजंट इट? अब देखिए मैंने लिखा है कि द मूवमेंट इन फ्लोएम इज बायडायरेक्शनल. व्हाई इट इज बायडायरेक्शनल? आप यहाँ इस पिक्चर को देखिए, मैंने ये एक रफ डायग्राम है ट्री का, जिसमें मैंने एक लीफ बनाया. लीफ में विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट फोटोसिंथेसिस हो रहा है. विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस सुक्रोज, फर्स्ट glucose will be formed and that glucose will be converted into sucrose, and this sucrose will be transported to upper part of the tree as well as to the lower part of the tree. Means that sucrose will move upward and downward in both directions. That's why we have written its movement is bidirectional. But what about the xylem? In xylem the movement of water and minerals in unidirectional. क्यों? क्योंकि ये रूट से होता हुआ हमेशा ऊपर की ओर ही होता है. भले ये लेफ्ट राइट जाए, लेकिन आएगा ये हमेशा अपवर्ड, ये डाउनवर्ड नहीं आता है, isn't it? I hope you have understood. That's why in case of xylem it was unidirectional, but in case of phloem it is bidirectional. Now you see the picture of this sieve tube. आप देख सकते हैं sieve tube का पिक्चर. पहले आप लेफ्ट साइड के पिक्चर को देखिए. मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर सिप ट्यूब का उसको बनाया है, और सिप का मतलब ये छन्ना, यानी जाली लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ देख सकते हैं आप, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, और इनके बीच से होता हुआ ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, वेयर सुक्रोज इज प्रेजेंट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ऑल दिस थिंग्स आर प्रेजेंट, सो दे विल कम आउट. ठीक है, और ये ऊपर चढ़ते जाते हैं. अब आप इस पिक्चर को देखिए, दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिप ट्यूब. इसके साथ एक अटैच्ड है कंपेनियन सेल्स दैट वी हैड डिस्कस्ड. तो कंपेनियन सेल्स को आप देख सकते हैं एक ब्लोसम फ्रेंड्स की तरह हमेशा इसके साथ चिपका हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको प्लेट्स दिख रहे हैं. आप देखिए ये प्लेट्स यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, जिसके बीच से मैंने रेड एरो दिखाया, जिससे होकर ये जो फ्लूइड है ये ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं विथ सुक्रोज. देख रहे हैं, और ये न्यूक्लियस लेस है. यहाँ पे मैंने SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाया है, और ये प्लास्टिड्स है. बट कंपेनियन सेल में देखिए मैंने रेड कलर से न्यूक्लियस को दिखाया है. यहाँ पर एक बड़ा सा वैक्यूल भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इजंट इट? सो दिस companion cells regulate the activities of this sieve tube cells. Now you see this diagram, that is related with the bulk flow hypothesis. So what is this bulk flow hypothesis? We have to understand so that we can understand about the translocation. So first of all you see the xylem vessels. I have drawn the xylem vessels. Last time we had seen the xylem vessel. It is the section. So in sectional view you can see
this arrow indicates the movement of the water that is moving upward, isn't it? And I have written transpiration stream. That was the transpiratory pool that we had discussed last time. So those who have not seen the video, they can see that video and they can understand it better way. So now you see this phloem sieve tube elements. Here आप देख सकते हैं ये जो लंबा सा कॉलम है ये sieve tube elements है. इनके साथ अटैच्ड है ये कॉम्पेनियन सेल्स, और कॉम्पेनियन सेल्स के बगल में है ये प्लांट्स के लीफ के सेल्स जहां पर सुक्रोज का फॉर्मेशन हो रहा है. इसको हमने लिखा है सोर्स सेल. व्हाई सोर्स सेल? बिकॉज दिस इज द सोर्स वेयर सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड, और ये सुक्रोज फिर यहाँ से कॉम्पेनियन सेल्स और कॉम्पेनियन सेल से सिव ट्यूब सेल में आएगा. बात को समझिएगा, मैं फिर रिवाइज करा रहा हूँ. यहाँ पर ये सोर्स सेल लीफ के अंदर है और ये सोर्स सेल सुक्रोज का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये सुक्रोज यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कॉम्पेनियन सेल्स में, कॉम्पेनियन सेल से सिव ट्यूब सेल्स में आएगा. इजंट इट? सेम कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है. सो नाउ आप देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से ले आता हूँ. यहाँ पर ये सोर्स सेल है जो लीफ का सेल था, सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ, सुक्रोज मूव कर रहा है यहाँ से. आप देख सकते हैं सुक्रोज मूव कर रहा है यहाँ से. ये सुक्रोज जो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाऊंगा कि कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बदौलत ये सुक्रोज कॉम्पेनियन सेल्स में आ जाता है. यहाँ से ये कोई जंप करके नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो एटीपी खर्च होता है और फिर ये सुक्रोज यहाँ एंट्री लेता है, और यहाँ पर कुछ प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है जिसकी मदद से ये सुक्रोज इस कॉम्पेनियन सेल में पहुँचता है. सो हम उसको नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे. अभी आप देख लीजिए कि ये सुक्रोज सोर्स सेल से कॉम्पेनियन सेल्स में आ गया, कॉम्पेनियन सेल से यहाँ पे सिव प्लेट्स हैं, सिव प्लेट्स के रास्ते ये सिव ट्यूब सेल में और सिव ट्यूब एलिमेंट्स में आ गया. ठीक है. अब ये मूव करता हुआ नीचे आ रहा है, और नीचे सुक्रोज आप देखिए, और यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए पहले कि जो सुक्रोज यहाँ पर कंसंट्रेशन सुक्रोज का बढ़ गया है, तब क्या हुआ कि वाटर का कंसंट्रेशन घटा है, तो तुरंत जो जाइलम इसके एडजेसेंट, इसके क्लोज कॉन्टैक्ट, मैंने यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस दिखाया सो डेट आप इसको समझ सकें, लेकिन होता ये क्लोज कॉन्टैक्ट में है. तो जाइलम बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये वाटर जो यहाँ पर ज़्यादा था, अभी ये वाटर मूव करके यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ा, और ये वाटर और सोल्यूट मिक्स होकर एक साथ आ रहा है. दैट वी हैव रिटन बल्क फ्लो ऑफ वाटर एंड सोल्यूट. इसलिए इसको एक डीप एरो से दिखाया है कि बल्क फ्लो हो रहा है, मास में फ्लो हो रहा है, झटके के साथ फ्लो हो रहा है, और एक साथ सभी आ रहे हैं बहुत तेजी से. तो यहाँ पर देखिए ये वाटर और सोल्यूट्स एक साथ आ रहे हैं, और यहाँ पर अब देखिए क्योंकि वाटर और सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप देख सकते हैं. तो यहाँ से देखिए ये अब मूव करके जा रहे हैं कॉम्पेनियन सेल्स, कॉम्पेनियन सेल से फिर सोर्स सेल, क्योंकि जो सोर्स सेल है इनको भी तो सुक्रोज चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और यहाँ से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाते हैं. और जो यहाँ पर वाटर और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देन अगेन ये वाटर मूव करता है. नॉट ओनली वाटर, सम सुक्रोज ऑल्सो मूव टुवर्ड्स दिस जाइलम वेसल. सो दैट इज द बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, इजंट इट? यही है बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सोर्स सेल में सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ, और सुक्रोज सोर्स सेल से कॉम्पेनियन सेल्स में, कॉम्पेनियन सेल से सिव ट्यूब सेल्स में, और सिव ट्यूब सेल से फिर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में वो जा रहा है. क्लियर? अब यहाँ पर का जो एक मिस्ट्री है कि कैसे ये कॉम्पेनियन सोर्स सेल से कॉम्पेनियन सेल्स में आ गया, आखिर कौन सा प्रोटीन हेल्प कर रहा था, कैसे एटीपी खर्च हुआ. सो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट पेज. यू कैन सी इन दिस पेज हियर आई हैव रिटन सिव एलिमेंट कॉम्पेनियन सेल कॉम्प्लेक्स. आप पहले इसको देख लीजिए. यहाँ पर मैंने दिखाया ये सोर्स सेल है यानी लीफ का सेल है, और ये कॉम्पेनियन सेल है, और ये सिव ट्यूब सेल है. ठीक है. कॉम्पेनियन सेल सिव ट्यूब सेल से ये सिव प्लेट से अटैच्ड है. ठीक है. अब आप देखिए इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बनाया है इसका, जो कि सोर्स सेल से कैसे जंप करके यहाँ जाता है. तो यहाँ पे ऐसा क्या मैकेनिज्म है इसको हम यहाँ देखेंगे. यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन चैनल्स हैं. इस प्रोटीन चैनल का नाम है हाइड्रोजन आयन एटीपेज, यानी ये हाइड्रोजन एटीपेज है, ये प्रोटीन है जो हाइड्रोजन आयन को अलाउ करता है कॉम्पेनियन सेल से सोर्स सेल में जाने के लिए. और यहाँ पर ये एटीपी खर्च होता है, तभी ये हाइड्रोजन आयन यहाँ आ पाता है. और इस तरह से बहुत सारा हाइड्रोजन आयन जब यहाँ आता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो यहाँ पे एक प्रोटीन और है जिसकी मदद से ये हाइड्रोजन आयन अगेन कॉम्पेनियन सेल्स में मूव करता है. और जैसे ये कॉम्पेनियन सेल्स में मूव करता है, साइमल्टेनियसली सुक्रोज भी इसके साथ मूव कर जाता है. ठीक है.
सो इस तरह के मूवमेंट को हम सिम्पोर्ट बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन के साथ सुक्रोज भी चला गया, नहीं यानी एक की मदद से दूसरा चला गया, यानी हाइड्रोजन आयन तो जा रहा था, तो हाइड्रोजन आयन के साथ साथ ये सुक्रोज भी मूव करके कॉम्बिनेंट सेल्स में आ गया, और इस तरह से ये सुक्रोज सोर्स सेल से कॉम्बिनेंट सेल्स में पहुंच जाता है। तो हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ था, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ था, तो इस तरह से ये सुक्रोज कॉम्बिनेंट सेल्स में आ गया, और कॉम्बिनेंट सेल से फिर सिप ट्यूब सेल्स में, और सिप ट्यूब सेल से फिर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Thank you very much once again. So please don't forget to subscribe the channel. Thank you very much.